Hello student, this is Ruby Rajput and I welcome you all. Today we are going to see a poetry which is taken from our Flamingo textbook, and the name of the poetry is My Mother at 66, which is written by Kamala Das. So student, before starting our poetry, let's see about the poet. Kamala Das was born in Malabar, Kerala. She is recognized as one of India's foremost poets. That means इंडिया के बेस्ट पोइट में से वो जानी जाती थी. Her works are known for their originality, versatility and the indigenous flavor of the soil. उनके कामों में हमें ओरिजिनलिटी देखने को मिलती है, वर्सैलिटी दैट मीन्स डिफरेंट टाइप ऑफ सब्जेक्ट्स के ऊपर लिखती हैं, एंड इंडिजिनस फ्लेवर ऑफ द सॉइल मतलब देश प्रेम की भावना उनके वर्क्स में हमें देखने को मिलता है. कमला दास हैज़ published many novels and short stories in English and Malayalam under the name of माधवी कुटी. मीन्स उन्होंने इंग्लिश में और मलयालम में काफ़ी सारे नॉवेल्स और शॉर्ट स्टोरीज़ लिखी हैं, लेकिन जब कभी भी वो मलयालम में लिखती थी उनका पेन नेम हुआ करता था माधवी कुटी. Some of her works in English include the novel Alphabet of Lust 1977, a collection of short stories Padmavati, The Harlot and the Other Stories 1992, in addition to 5 books of poetry. कुछ वर्क्स को यहाँ पर शामिल किया गया है, बताया गया है. She is a sensitive writer, वो काफ़ी सेंसिटिव राइटर हैं, who captures the complex subtleties of human relationship in lyrical idioms. वे क्या करती हैं, ह्यूमन रिलेशनशिप के छोटे से छोटे और कॉम्प्लेक्स चीज़ों को कैप्चर करने की कोशिश करती हैं और अपने वर्क्स के ज़रिए वो हम तक पहुंचाने की कोशिश करती हैं. उनका बेस्ट एग्जांपल अगर लिया जाए इस चीज़ का, ह्यूमन रिलेशनशिप का, तो माय मदर एट 66 इज़ अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप. इन दिस पोएम वी कैन सी that this poem is based on mother-daughter relation and the poet shares her feeling for her mother. That means in this poem Kamala Das want to say that sometimes we do feel deep feeling and sympathy for someone, but we fail to express it in a proper way. So now let's begin our poetry. Driving from my parents' home to Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me doze, open-mouthed, her face a scene like that of a corpse. That means the poet is driving from her parents' home to Cochin airport. And when did it happen? It was last Friday morning. At that time, she noticed her mother who was sitting beside her. Her mother was dozed. Doze means sleep lightly. Open-mouthed. Open-mouthed is a symbol of old age. That means जब old age आ जाता है तो सोते समय मुंह कभी कभी खुला रह जाता है. Her face ashen. That means her face is described as ashen means dull, lifeless, colorless, pale, like that of a corpse. Corpse means dead body. तो उनके फेस को डेड बॉडी के साथ में कंपेयर किया गया है. ऐसा लग रहा है कि मानो पॉइंट के साथ में उनके बगल में उनकी सीट पर किसी डेड बॉडी को बिठा दिया गया हो. And realized with pain that she was as old as she looked, but soon put that thought away and looked out at young trees sprinting, the married children spilling out of their homes. फिर क्या होता है? At that time the poet realized that her mother is getting very old because she was as old as she looked and she is not going to live long. When the poet realized her mother's oldness, she is very sad and feeling pain. जब पोइट को ये रियलाइज़ होता है कि उनकी जो मदर हैं वो काफ़ी ओल्ड हो चुकी हैं और वो ज़्यादा समय तक अब उनके साथ नहीं रह पाएंगी, मतलब जो डेथ है वो कभी भी आ सकती है ओल्ड एज के समय में. तो ये फीलिंग जब उनको इस फीलिंग का रियलाइज़ होता है तो उन्हें काफ़ी
पेन होता है। एंड दिस सिचुएशन इज़ हैपनिंग इनसाइड द कार। ये सारी सिचुएशन हमें देखने को मिल रही है जो कि कार के अंदर हो रही है, विच इज़ अ सिंबल ऑफ डेथ एंड डिके। बट सून पुट दैट थॉट अवे। लेकिन तभी राइटर क्या करती हैं, वॉन्ट टू डिस्ट्रैक्ट हर माइंड, वो अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही हैं। सो शी लुक्ड आउट, वो कार के बाहर देखने लगती हैं। एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, स्प्रिंटिंग मीन्स रनिंग फास्ट। अभी आप कहेंगे कि ट्रीज़ कैसे दौड़ सकते हैं, तो जब कभी भी आप ट्रैवल करते हैं तो आप देखते हैं कि जो ट्रीज़ हैं वो आपके अपोजिट डायरेक्शन में ऐसा लगता है कि मानो भाग रहे हों। तो वही यहाँ पर बताया गया है, ट्रीज़ स्प्रिंटिंग। जब वो कार के बाहर देखती हैं तो उनको लगता है कि ट्रीज़ स्प्रिंटिंग कर रहे हैं। द मैरी, मैरी मीन्स हैप्पी, हैप्पी चिल्ड्रन स्पेलिंग, स्पेलिंग मीन्स मूविंग, बाहर आना। आउट ऑफ देयर होम्स, अपने घरों से बाहर आकर वो काफ़ी उछल कूद कर रहे हैं। एंड दिस इज़ द सिचुएशन विच इज़ हैपनिंग आउटसाइड द कार, विच इज़ full of energetic, full of life, full of youth and full of vitality. So student, here we can see two contrasting situation. One inside the car which is symbol of death and decay, and other outside the car which is energetic, lifeful and youthful and full of vitality. But after the airport security check, standing few yards away, I looked again at her, vain, pale as a late winter's moon. But when the author did the security check, her mother, who was standing few yards away, the poet looked at her mother. At that time, her mother looked like vain. Vain means colorless, lifeless, sick. Pale, pale means yellowish. That means उनके जो चेहरे पर बिल्कुल भी तेज़ या चमक नहीं था। एज अ लेट विंटर्स मून, और उनके फेस को विंटर के उस मून के साथ में कंपेयर किया गया है जो कि लाइफलेस होता है, डल होता है, ब्राइटनेस नहीं होती है जिसके अंदर। उस विंटर के मून के साथ में राइटर की मदर के फेस को कंपेयर किया गया है। एंड फेल्ट दैट ओल्ड familiar ache, ache means pain, means the poet is already familiar with the ache. poet already अपने उस पेन से, अपने उस दर्द से फेमिलियर है। यहाँ पर कौन सा दर्द, माई चाइल्डहुड्स फियर। ऐसा लग रहा है कि वो बचपन का डर फिर से मानो वापस आ गया है। द फियर ऑफ सेपरेशन फ्रॉम वंस मदर, जब बच्चा स्कूल जाता है तो उसे ऐसा लगता है कि वो अपनी मदर से सेपरेट हो रहा है। एंड दैट फियर ऑफ सेपरेशन इज़ टेम्प्ररी, क्योंकि उसकी मदर तो फिर उसे मिलने वाली है। बट हियर द सेपरेशन फ्रॉम हर मदर एंड दिस फियर इज़ परमानेंट, बिकॉज राइटर कहीं जा रही है एयरपोर्ट से और उन्हें नहीं पता कि वो फिर दोबारा अपनी मम्मी से मिल पाएंगी कि नहीं मिल पाएंगी। तो ये जो फियर है ये परमानेंट है। सो इस फियर से वो ऑलरेडी फेमिलियर हैं, इस दर्द से ऑलरेडी राइटर जो है, पोइट जो हैं वो फेमिलियर हैं। बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा, लेकिन वो खाली इतना ही कह पाती हैं, सी यू सून अम्मा, बहुत ही जल्द हम मिलेंगे। एंड आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और खाली वो स्माइल कर पाती हैं, वो फेक स्माइल टू कंसोल हर एंड हर मदर, खाली अपने आप को और अपने मदर को कंसोल करने के लिए वो अपने चेहरे पर फेक स्माइल लेकर आती हैं। क्यों? हियर इट इज़ द एक्सेप्टेंस ऑफ रियलिटी, रियलिटी को एक्सेप्ट करती हैं वो, द रियलिटी ऑफ लाइफ एंड डेथ। द पोइट एक्सेप्टेड द एजिंग ऑफ हर मदर, अपने मदर के एज को एक्सेप्ट कर रही हैं वो, दैट शी इज़ वेरी ओल्ड एंड डाई सून
समडे और अदर, कि वो कभी भी मर सकती हैं, आज कल या कभी भी। उनकी एज जो है वो इतनी ओल्ड हो चुकी हैं कि जो डेथ है वो किसी भी वक्त उन तक आ सकती हैं। तो इसीलिए वो अपने चेहरे पर फेक स्माइल लाए हुए अपनी मदर को देखकर जस्ट खाली स्माइल पास कर रही हैं। दैट्स इट। इफ़ you have any query, please contact through our WhatsApp group. And here are few poetic device, that means कह सकते हैं figure of speech, which is very important for you in your board exam as well as for your unit test. So you have to note down and learn that. And here are few question answers which are very important for you, so you have to note down in your notebook and learn these question answer for your unit test also. So student, will meet you next week. तब तक के लिए bye bye, take care.